So Rohit Khatri is a 100% natural athlete. So stop hating on him. So today I am reacting on Rohit Khatri's body transformation video. And let's see what he has to say. It says 4 years transformation. So he is India's #1 fitness YouTuber. And I am honored to make this video. So 2014 में Rohit Khatri used to be a bit chubbier. I would say skinny fat. So in 2015, it looks like he's pretty skinny here. That is why उन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को नाम दिया है skinny to aesthetic transformation. So he's just a scrawny little boy in 2015. और फिर 2016 में this is his first year of training, and we can see that this guy has changed dramatically. He went from a skinny boy in 2015 to someone who looks pretty good in 2016. वो भी सिर्फ और सिर्फ 12 महीनों में. Does this guy has Kai Green genetics? Okay, let's proceed. Usually एक आम इंसान को एटलीस्ट 3 से 4 साल लगते हैं इस शेप पे आने में, कंसिडरिंग कि वो पहले दिन से किसी ऐसे कोच की सुपरविजन में है जो इसके लिए प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, सप्लीमेंटेशन प्रोटोकॉल वगैरह बनाकर दे. So in 2017, he has packed on a couple more pounds of fat-free mass in his frame. I mean, that is very impressive. और अब तक रोहित को ट्रेनिंग करते हुए कोई 2 साल हो गए हैं. His legs development is very impressive. It doesn't look like कि ये वही बंदा है जिसकी तस्वीर हमने 2015 वाली देखी है. It doesn't look like this guy has shitty genetics. और फिर 2018 में दोबारा से लीन साइज अपने फ्रेम में रोहित खत्री ने यहाँ पे ऐड किया है. And not only this, at the same time, he has become leaner as well. I would say he can literally compete in this shape. So this is a very dramatic transformation. सिर्फ 2017 और 2018 में a big difference can be observed. Is this a 3-year transformation video? Because ये वीडियो पब्लिश हुई है 2018 मई. So let me check. So yes, this is actually a 3-year transformation video. So after 3 years, Rohit is all set to pose. Of course, he is lean, but definitely not in single digits. His legs development is very amazing. A very well developed back, well separated shoulders, pretty good size and decent conditioning in 3 years. So what do I think? Is this transformation natural? तो अब मैं आपके सामने क्या करता हूं, मैं आपको तस्वीर के दोनों रुख दिखाता हूं. Why I think कि this transformation is natural and why I think this transformation is not natural. So अगर मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिफेंड करना है कि yes, this is a pretty obvious natural transformation, तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा. पहला पॉइंट, जब इंसान ट्रेनिंग शुरू करता है, इट्स ऑल न्यूबी गेन्स इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, एंड टू बी ऑनेस्ट दे गिव स्टेरॉइड लाइक रिजल्ट्स. सिंस दे आर न्यूबी गेन्स, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. एवरी पर्सन एक्सपीरियंसेस इट. फिर दूसरा पॉइंट ये कि इन माय ओपिनियन रोहित इज अ हाइपर रिस्पॉन्डर टू वेट ट्रेनिंग. हिज बॉडी हैज बिहेव्ड प्रीटी वेल विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी कि he has pretty good genetics to pack on muscles. So having good genetics is having a good talent. So अगर talented होने में कोई गुनाह है, talented होने में कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले जाके जॉनी सिंस को पकड़ो. He is the master, he is the king of all trades. फिर अगला पॉइंट ये कि 3 साल बाद रोहित खत्री has reached his genetic potential and since then he hasn't progressed. ऐसा नहीं हुआ कि फर्दर उसके बाद हमने उसे 10 to 15 pounds heavier देख लिया हो. So if he was taking performance enhancing drugs, he would have gotten bigger in size, but he hasn't, which is also evident from his 100 days transformation video. He is back in his previous shape. It doesn't look like he has become heavier than his previous transformation. So this is what the genetic peak of Rohit Khatri is. So Rohit Khatri is a 100% natural athlete. So stop hating on him. अब मैं आपके सामने वो पॉइंट्स रखता हूं कि why I believe कि this transformation is freaking enhanced. पहला पॉइंट, इस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले रोहित की एज थी 18 साल. सो इफ रोहित वाज अ जेनेटिक फिनोम, यानी अगर रोहित के जेनेटिक्स बहुत अच्छे होते तो ये चीज 18 साल की उम्र तक नुमाया हो जाती. He wouldn't have been a skinny guy. This is his first official Instagram post back in May 2016. ये वो साल है when रोहित started training. So you are trying to tell me
कि this is what you can achieve naturally in the first year of training, especially when you were looking like this? Honestly, that doesn't make any sense to me, to be honest. ये उसी वक्त हो सकता है जब रोहित किसी आइलैंड पे जाके फंस चुका हो, जस्ट लाइक दैट टॉम हैंक्स मूवी, जहां पे उसको ना प्रॉपर खाने को मिल रहा है, ना पीने को मिल रहा है, ही इज नॉट स्लीपिंग इनफ, ही इज नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन, ही इज नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग. तब तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज दिस डज नॉट मेक एनी सेंस. अगर मुझे कोई ये तस्वीर दिखाए और कहे कि ये पहले साल की ट्रांसफॉर्मेशन है, सो आई वुड से इवन ऑन एनाबॉलिक्स दिस इज सुपर इंप्रेसिव, आई शुड से. कितने ऐसे लोग होते हैं जो 5 साल ट्रेनिंग करके भी इतना वेल डेवलप बैक रखते हो, और स्पेशली द मसल मेच्योरिटी सेज इट ऑल. सो दिस इज ऑफ कोर्स एन एनहेंस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इवन इफ इट इज एनहेंस, आई शुड से रोहित खत्री इज अ हाइपर रिस्पॉन्डर टू वेट ट्रेनिंग एंड फार्माकोलॉजी. अगर मैं आपके सामने इस वक्त ये कह दूं कि दिस इज व्हाट यू कैन अचीव नेचुरली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर ट्रेनिंग, तो आप ये सोचें कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि लाइक 5-5, 7-7 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं. वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार हम ऐसा क्या नहीं कर रहे, या इनफैक्ट ये ऐसा क्या कर रहा है जो हम नहीं कर रहे. हम प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर लाइक ट्रेनिंग कर रहे हैं, सप्लीमेंटेशन, रेस्ट, रिकवरी, हर चीज प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, बट वी आर नॉट दैट फ्रीकिंग डेवलप्ड. सो व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग. And now a clear red flag why Rohit Khatri is not natural is the fact that he is always gaining fat-free mass and no fat. ऐसा बहुत rare होता है. Just look at his transformation again. So in the first year, he has added at least 15 pounds of pure lean tissue. Again, that can vary depending upon his height. और फिर दूसरे साल में the same trend continues. He is just getting bigger and bigger. चले हम ये कह सकते हैं कि इन द फर्स्ट ईयर ही इज अ न्यूबी, ही इज एडिंग मसल एंड लूजिंग फैट एट द सेम टाइम, बट ही इज गेटिंग ह्यूज इन द सेकंड ईयर एज वेल विदाउट गेनिंग फैट. एंड दिस इज द पॉइंट विच इज द अल्टीमेट डिसाइडर, दैट इज द थर्ड ईयर. दिस इज हाउ ही लुक्स इन द थर्ड ईयर ऑफ हिज ट्रेनिंग. He is not only bigger as compared to his second year, but at the same time he has become freaking lean as well. So you cannot just gain fat-free mass year after year after year, especially जब आप consistently training करते हुए आ रहे हो चंद सालों से. And this is also evident from this very transformation video. गाइस, हमारे पता बॉडी बिल्डिंग में कोई बल्किंग गेनिंग नाम की चीज नहीं होती है. हमारी बॉडी बिल्डिंग 2 चीजों से चलती है. आपने कभी मेरे को देखा है कि मैं बल्किंग पे हूं, मैं कटिंग पे हूं? हमारा 2 ही काम होने चाहिए, मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस. So it clearly says that he is not into bulking, he is just gaining pure lean tissue. So you cannot just pack on lean muscle mass in calorie deficit after years of training. This is only possible when you're on performance enhancing drugs. तो अब मैंने आपके सामने दोनों स्पेक्ट्रम्स रख दिए. Why I think he is natural, why I think he is not natural. अब देखें what I personally believe. एक चीज तो देखो तय है कि there are genetic phenoms, there are genetic freaks out there, जैसे कि क्विंटन एरिया, या जिनको हम क्विंट बीसफुट के नाम से भी जानते हैं. ये बंदा 1 से 2 साल के अंदर अंदर इतना इंप्रेसिव हो गया था नेचुरली, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि ये बंदा 1-2 साल से ट्रेनिंग करता हुआ आ रहा है. या फिर अगर हम काई ग्रीन की बात करें, वो बंदा अपने टीन्स में ऐसा दिखता था कि लोग 10 साल ट्रेनिंग करके भी ऐसे नहीं दिखते. या इनफैक्ट बहुत सारे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स ऑन अ शिट टन ऑफ एनाबॉलिक्स ऐसे नहीं दिखते. या फिर अगर मैं ली प्रीस की मिसाल लूं, अगेन ही वाज अ फ्रिकिंग जेनेटिक फिनोम. वो बंदा भी अपने टीन्स में ही वाज लाइक सुपर इंप्रेसिव, आई शुड से. सो देयर आर ऑलवेज जेनेटिक फिनोम्स आउट देयर. और देखो ये भी हो सकता है कि रोहित खत्री इज वन ऑफ देम. यू डोंट नो इट. सो अगर मेरे सामने ये फिजिक दिखाई जाए कि इज दिस कैन बी अचीव नेचुरली, सो आई वुड से यस. व्हाई? बिकॉज जो लोग जेनेटिकली अच्छे होते हैं वो इजिली इस फिजिक को अचीव कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट रोहित खत्री? Based on the before photo, this is what his muscle building genetics demonstrate. And after a handful of years, he has achieved this look. And not only this, he is gaining pure lean muscle mass for 3 years straight. So, based on this, I don't think so it's natural at all. There is no one out there जो सिर्फ और सिर्फ muscle gain करे और fat ना gain करे, especially when they are natural and training consistently for years. In addition, कैलोरी डेफिसिट पे मसल बिल्ड किया जा सकता है. देखिए 2-3 कंडीशंस होती हैं. पहली कंडीशन होती है व्हेन यू आर अ न्यूबी. व्हेन यू आर अ न्यूबी, ड्यू टू न्यूबी गेन्स, यू कैन लाइक लूज फैट एंड गेन मसल एट द सेम टाइम. या फिर आपने काफी टाइम से ट्रेनिंग छोड़ी हुई है एंड यू हैव लाइक accumulated a lot of fat and lose some sort of muscles. So even in that case, you can like build muscle and lose fat at the same time. But when you are training consistently for years and only gaining lean muscle mass and no fat,
especially in your third year. So this is a big red flag that yes, there is some pharmacology involved. So I personally don't think that his 3-year transformation is natural. हो सकता है कि he is natural at the moment right now. But based on this video which I am reacting on, I don't personally think that this has been done naturally. But besides the fact that whether he is natural, whether he is not natural, एक चीज तो देखो ये पक्की है, एक चीज तो ये तय है कि in my personal opinion, Rohit Khatri is a very hardworking and a focused person. Whether you agree or don't agree, क्योंकि देखो, whether he's taking something, he's not taking something, you have to put in the effort. And I have like seen in his transformation video कि yes, he freaking puts in the effort. कितने लोग ऐसे होते हैं जो like 20-22 साल की उम्र में he is almost like reaching 5 million subscribers in no time. 5 million subscribers, I think एशिया का सबसे बड़ा फिटनेस चैनल है ये. So, and it like really feels me bad कि यार ठीक है, सही गलत देखो, सही गलत एक अलग चीज होती है ना. गलतियां मैं भी करता हूँ, गलतियां आप भी करते होंगे, फरिश्ता कोई नहीं पैदा होता. लेकिन the way people are like critiquing him, देखो क्रिटिक करना, क्रिटिसाइज करना, इवन दैट इज फाइन. अगर मैं यहां बैठ के ये सोच रहा हूं कि आई एम ऑन सोशल मीडिया और मुझ पे कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, देन आई एम द अल्टीमेट इडियट. देयर विल ऑलवेज बी पीपल आउट देयर जो आप पे क्रिटिक करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, दैट इज परफेक्टली फाइन. लेकिन देखो, एक चीज होती है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक चीज होती है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. आई एम सॉरी टू से बट पीपल आर लाइक डिस्ट्रॉइंग हिम. आप ये सोचो ना कि यार आप लाइक 20-22 साल के हो एंड लाइक मिलियंस ऑफ पीपल आर फॉलोइंग यू, और रोज के हिसाब से आपको हजारों गालियां मिल रही हैं, तो आपकी अपनी थिंकिंग पे कितना असर पड़ेगा, आपकी खुद की पर्सनैलिटी पे कितना फर्क पड़ेगा. वो छोड़ दोगे जी यूट्यूब पे पैसे वैसे, उन सब चीजों को छोड़ दो, मेंटली आप कितना डिस्टर्ब रहोगे. तो अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर भी रहे हैं, सो डू इट कंस्ट्रक्टिवली. हो सकता है कि वो बेहतर हो जाए उस रोल में, हो सकता है कि वो उस एस्पेक्ट में जहां पे वो लैक कर रहा है उसे इंप्रूव कर ले. बिकॉज देखें, इन माई पर्सनल ओपिनियन देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इंप्रूवमेंट. हर चीज किसी भी मौके पे इंप्रूव की जा सकती है. देयर इज नो फ्रिकन रॉकेट साइंस इन इट. एंड ऑल्सो I would like to request at least my subscribers कि please don't show your hate in this video's comments. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. फिर मिलते हैं.